ناظرین، افغانستان کے اندر حکومت سازی کا مرحلہ غور و خوض جاری ہے، جلد اعلان متوقع بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی بھی اپنے وفد کے ہمراہ کابل پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ وادی پنجشیر کے اندر اس وقت طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مزاحمت بھی جاری ہے۔ سوالات بہت سارے ہیں، لیکن جو اہم سوال اور نقطہ ہے وہ یہ کہ نئی بننے والی جو حکومت ہوگی اس کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے، کیونکہ حکومت بنا لینا تو کوئی مشکل کام نہیں، لیکن حکومت کو چلانا، آگے لے کر چلنا، وہ بہت اہم کام ہے اور بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر انٹرنیشنل اور ویسٹرن پاورز خاص طور کے اوپر ان کی ایکسیپٹیبلٹی، یعنی ان کا تسلیم کر لینا حکومت کو، وہ کیسے ہوگا، اور معاملات حکومت آگے چل کے کیسے ہوں گے، خطے کے اندر اس تمام تر صورتحال کے اثرات مرتب کیا ہوں گے، اس سب پر آج ہم بات کریں گے۔ اپنے اس پروگرام کے اندر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب۔ السلام علیکم اور بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے سابق سفیر ایاز وزیر صاحب، اور اب سے کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے سینئر تجزیہ کار اوریہ مقبول جان صاحب۔ میں آپ سے ایاز وزیر صاحب آغاز کرتا ہوں، ذرا یہ چیلنجز کیا آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی نئی بنے گی گورنمنٹ افغانستان کے اندر، اس کے چیلنجز کیا ہوں گے سر؟ دیکھیے، چیلنجز تو اتنے ڈھیر سارے ہیں کہ اللہ خیر کرے اس کے نیچے یہ دب نہ جائے۔ سب سے پہلی بڑی چیلنج تو یہ ہے کہ ان کی ریکگنیشن کا مسئلہ ہوگا۔ باہر دنیا کی ریزرویشن ہے، خاص کر امریکہ اور ویسٹ کی، وہ مرحلہ کیسے طے کریں گے۔ پھر ملک کے اندر لوگوں کی ریزرویشن ہے، ابھی چپ ہے لیکن ریزرویشن ضرور ہے۔ تو اگر ایسی حکومت لے آئے جس پہ سارے لوگ خوش ہوں، جس کی ان سے توقع کی جا رہی ہے، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی حکومت نہ آئی تو پھر ٹینشن ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ان کے یہ جو دوسرے دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خاص کر آئی ایس، ٹی ٹی پی، داعش اور ای ٹی آئی ایم وغیرہ، ان کے ساتھ وہ کس طرح ان کے اوپر قابو پالیں گے۔ بعض خاص کر آئی ایس اور خراسان آئی ایس کے پی جو ہے، وہ تو ان کے کل کے دشمن ہے، آمنے سامنے ایک دوسرے کو مارا ہے، یا دوسرے پھر بھی ذرا ہٹ کے شاید مان جائے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے۔ تیسرا مسئلہ امیڈیٹ نیبرز کے کنسرن کو ایڈریس کرنا ہے۔ چوتھا مسئلہ ان کو پیسوں کا ہے، ملک کو چلانا ہے، پیسے نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کرانی ہے، دوسرے ملکوں کی طرح ملک آگے لے جانا ہے، وہ مرحلہ کیسے طے ہوگا۔ تو بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ایک چیلنج ہوتا تو میں کہہ لیتا، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو اس ریجن کے ممالک ہیں وہ بڑے پازیٹیو اپروچ رکھتے ہیں ٹورڈز افغانستان۔ تو مجھے امید ہے اگر امریکہ اور ویسٹ سے توقعات کے مطابق ریئیکشن نہ ہو، بلکہ ان کو مزید تنگ کرے، جیسے امریکہ نے ان کے بھی $9 بلین روکے ہوئے ہیں جو افغانستان کے ہیں لیکن امریکن بینکوں میں پڑے ہیں، تو پھر اس حالت میں یہ ہمارے ریجن کے ممالک افغانستان حکومت کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہرحال عرض کر لیا، چیلنجز بہت ہیں، ہماری دعائیں۔ رائٹ سر، آپ نے یہ بات کی ہے سر۔ شہزاد چودھری صاحب، جو چیلنجز گنوائیں چیدہ یہ 4-5 چیلنجز جو میں نے اپنے پاس جو نوٹ ڈاؤن کیے، ایاز صاحب نے جو بات کی، پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ اگر ویسٹرن پاورز یا امریکہ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں، ان کی جو پازیٹیو اپروچ ہے، یہ نئی بننے والی افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکے گی؟ دیکھیے، ایک جو سٹڈی جو کہ بہت زیادہ کوٹ ہو رہی ہے آج کل افغانستان کی وار کے بارے میں، 20 سال جو امریکہ رہا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو $2 ٹریلین کی بات کرتے ہیں، جب اس کو ایوریج آؤٹ کیا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ 300 ملین روزانہ ڈالرز افغانستان پہ خرچ ہوئے امریکہ کے، یعنی $30 کروڑ روزانہ۔ اچھا، اب اگر اس قسم کی وہاں پہ ایک اکانومی، پیرلل اکانومی کریٹ کی گئی جس کا کہ 75-80% یا ہو سکتا ہے 85-90% بھی اس کا حجم تھا اس طرح کی اکانومی کا، اب وہ اتنا پیسہ جب ایک دم سے نکل گیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جتنا بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے اس کو بھرے گا کون؟ اب مثال کے طور پہ چلیے ہم 30 کروڑ کی بات نہیں کرتے، ہم میکسیمم 10 ارب کی بات کر لیتے ہیں، وہ ڈالر جو کہ امریکہ کے پاس پڑے ہیں اور وہ نہیں دینا چاہ رہا اس وقت طالبان کو۔ تو کیا چائنا
ایران، ٹرکی، پاکستان، تاجکستان، رشیا، یہ کیا مل کے کوئی $10 ارب کریٹ کر لیں گے؟ کوئی اس قسم کی کوئی چیز کریٹ ہو جائے گی، فنڈ بنے گا جو کہ سپورٹ کر سکے؟ تو کہنے کا مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر، اور میں چاہوں گا سر ذرا اس کو ایلابریٹ بھی کیجئے گا کہ اگر امریکہ نہیں کرتا ہے، ویسٹرن پاورز نہیں کرتی ہیں، تو جن ممالک کا نام آپ نے لیا ہے کیا وہ مل کے کر سکیں گے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی ملک اتنا پیسہ کسی وقت میں ایک وقت میں لیکوڈیٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنا ایک طرح سے فنڈ بنا لے اور اس کو کر دے۔ انٹرسٹنگلی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے SCO، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے مل کے ایک فنڈ کریٹ کیا تھا جس کو ڈیولپمنٹ بینک فنڈ کا نام دیا گیا، SCO کا ڈیولپمنٹ فنڈ۔ ٹھیک ہے، افغانستان اس کا ممبر ہے۔ اچھا، اب اگر افغانستان ممبر ہے تو SCO پہ وہ کتنا ٹیپ کر سکتا ہے وہاں پہ؟ اچھا چلیں، کچھ وہاں سے ٹیپ کیا، کچھ اسلامک بینک سے ٹیپ کیا، اس طرح کر کے یہ پیسہ، اور کوئی پیسہ اس طرح دیتا نہیں ہے جب تک اس کو واپسی کا کوئی یقین نہ ہو۔ تو ایک ایفرٹ ہے جس سے کہ مارشل پلان کے طور پہ صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو ری بلڈ کیا گیا، اسی قسم کا مارشل پلان افغانستان کے لیے چاہیے اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے۔ لیکن کون سا مارشل ہے جو کہ اس وقت آگے بڑھ کے یہ کام کرے گا، یہ اس وقت کلیدی سوال ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ چائنا بیڈ منی کے پیچھے اپنی گڈ منی کبھی نہیں بیچتا، وہ انتظار کرتا ہے اس وقت کا جب تک کہ جتنا پیسہ لگایا ہے کم از کم وہ واپس آ جائے، یا اگر اس سے زیادہ واپس۔ تو سر یہ گیپ تو پھر رہے گا، اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ تو گیپ رہے گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز، IMF، ورلڈ بینک، یہ جو ہیں ان کے بغیر افغانستان کو سپورٹ کیے کوئی مجھے رستہ فی الحال نظر نہیں آتا۔ رائٹ سر، میں اسی سوال کو ذرا اوریہ صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ایک کمرشل بریک میں نے لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے اوریہ صاحب سے بھی اس کے اوپر مزید بات کریں گے، ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور یہ صاحب آپ سے میرا سوال ہے، ایاز صاحب نے کچھ چیلنجز کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ شہزاد چودھری صاحب نے بھی کچھ بات کی فائنانس کے حوالے سے۔ اگر امریکہ نہیں دیتا، ویسٹ نہیں دیتا، تو جو ریجن کے جو ممالک ہیں وہ مل کر بھی کیا اتنا پیسہ جنریٹ کر سکیں گے کہ نئی بننے والی حکومت کو چلایا جا سکے؟ آپ کے نزدیک یہ چیلنجز کیا ہیں، اور اب تک یہ حکومت سازی کا مرحلہ مکمل کیوں نہ ہو سکا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سسٹینیبل اکانومی جو ہے نہ تو پڑوسیوں کی مدد سے چلا کرتی ہے اور نہ کسی IMF اور ورلڈ بینک سے چلا کرتی۔ یہ آج کے موجودہ دور کی صورتحال ہے جس سے پیدا ہوا ہے۔ نہ آپ ڈالر کھاتے ہیں، نہ آپ ڈالر لیتے ہیں، نہ ڈالر سے آپ زندگی میں کچھ اور ضروریات زندگی گزارتے ہیں۔ افغانستان کی جو پوری کی پوری اکانومی ہے اس میں صرف اس وقت 10 یا 12 جزیرے ہیں جو انہوں نے آ کے بنائے ہیں، جو شہروں کے اندر، جن کو ریڈ زون کہتے تھے، کندھار میں بنایا، ہرات میں بنایا، لشکرگاہ میں بنایا، خود کابل شہر کے اندر 3.5 کلومیٹر کا جزیرہ بنایا، جس کے اندر وہ لوگ آباد ہوئے کہ جو کبھی ان کے ساتھ 40 سال پہلے سے چلے آ رہے تھے مترجمین کے طور پہ، اور ایک انہوں نے بڑی شاندار قسم کی اربن لائف پیدا کی۔ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں اربن لائف کی، ٹھیک؟ ایک گاؤں کی جو اکانومی ہوتی ہے نا، جو افغانستان پورا 90% ہے، وہ اس میں صرف نمک خریدنے وہ لوگ باہر جاتے ہیں، اور کسی چیز کی ان کو ایسی ضرورت نہیں ہوتی، دوائیوں کی یا باقی چیزوں کی بھی وہ اپنے طور پہ وہ ان کی چلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کبھی جس نے بلوچستان میں نے 24 سال گزارے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ سسٹینیبل صورتحال کیا ہوتی ہے، وہ ایک سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی کھڑے ہونا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے، تو دنیا آپ کو ایک دن کے لیے مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ کے یہاں فاقے پڑ جائیں۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جس دن 1999 کے اینڈ میں بامیان کا بہانہ لگا کے یونیسکو اور چلے گئی تھی وہاں سے، اور انہوں نے تمام، اور قحط تھا افغانستان میں، گندم نہیں تھی، ہر طرف سے آٹا کی سپلائی بند کر دی گئی تھی، اور اس وقت وہ چلے گئے تھے اپنی بیکریاں بند کر کے، کابل شہر ویران ہو گیا تھا، تو جامعۃ الرشید اٹھا تھا، اور جامعۃ الرشید نے 1000 تندور لگائے تھے اور پورے کابل میں قحط نہیں ہونے دیا تھا۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ اکانومی کیا چیز ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 لاکھ انہوں نے لوگ کٹھے کر لیے ہیں جن کو 5 سے 7 ہزار روپے تنخواہیں دیتے ہیں، تو یہ جب جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں ختم ہوتی ہیں، یہ ہر جگہ ہوا کرتا ہے۔ پاکستان میں 1988 کے اندر جتنی بے روزگاری آئی تھی، جس وقت روس وہاں سے نکلا ہے، اور جو انہوں نے امپلائی کرنے شروع کیے تھے، آکسفیم سے لے کے اور UNHCR سے لے کے، لاکھوں لوگ تھے جو مترجمین تھے، سب بے روزگار ہو گئے تھے، اور جو 50,000 روپے لیتا تھا وہ 5,000 روپے کی تنخواہ کے اوپر آ کے نوکری کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 2001 میں دوبارہ ان کا حلہ بنا، اور دوبارہ انہوں نے دوبارہ آباد ہونی شروع ہوئی ان کے گھر اور ان کی زندگیاں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ
ये जो आपने सवाल, दूसरा 75 साल जो हैं, आपको एक वर्ड नजर आती है जिसको हम कम्युनिस्ट वर्ड कहते हैं, जिसका दुनिया के मॉनेटरी सिस्टम के साथ कोई वास्ता नहीं था। वो बाजार से डॉलर खरीदते थे और बाजार से सोना खरीद के अपनी इंटरनेशनल पेमेंट्स किया करते थे। कोई ताल्लुक नहीं था उनका, ना चेकोस्लोवाकिया का था, ना यूगोस्लाविया का था, ना हंगरी का था, ना रूस का था, ना किसी और ऐसे मुल्क का था। उन्होंने अपनी इकोनॉमी चला के दिखाई कि हम कैसे चला सकते हैं। कोरिया तो सर नई बनने वाली जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, क्या वो बगैर किसी मदद के अपनी इकोनॉमी को अपने चैलेंजेस से निपट सकेगी आगे? 100%। आप मुझे ये बताइए कैसे निपटा जाता है? आप क्या समझते हैं कि इस पूरे उसके जिस वक्त आप सिर्फ तोरखम में क्यों नहीं जाते? मैं पाकिस्तान के साफियों से कहता हूं, निकलो तोरखम पे जाओ। तोरखम में पाकिस्तान का रेवेन्यू गुज़श्ता अगस्त के मुकाबले में 80 मिलियन रुपीस ज्यादा हुआ है। डॉक्टर आसफ जहा उसका इंचार्ज है, उससे कल मुझे आके बताया, वो एडिशनल कलेक्टर कस्टम है, उसमें है अपना CBR में 21 ग्रेड का पूरे रीजन का इंचार्ज है। इस वक्त वहां पर हालत यह है कि तालिबान ने 1/3 रेवेन्यू कर दिया है। जो इकोनॉमी जिनकी कमजोर हो रही हो, वो 1/3 नहीं करते। अगर एक ट्रक में 20,000 था तो वो इस वक्त 8,000 रुपया उसका लेवी दे रहा है। ये इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है। मतलब आप मुझे बताएं, 1947 में पाकिस्तान बना है, 1947 से पहले 1 रुपए का कर्ज नहीं था इस बरसीर पाको हिंद के ऊपर। क्या पाको हिंद चल नहीं रहा था? क्या यहां रेलवे लाइन बिछ रही थी, यहां दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम बन रहा था? ये आप IMF और वर्ल्ड बैंक के एक बहुत बड़े जो डेट ट्रैप चक्कर के अंदर आके दुनिया को पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कौन इकोनॉमी पढ़ाता है और कौन इकोनॉमी सिखाता है मॉडर्न। उस ट्रैप के अंदर आप खड़े होना चाहिए। मैं ईरान में रहा हूं, 32 साल उन्होंने गुजारे हैं। 9 बिलियन है उनका, 38 बिलियन डॉलर उन्होंने रोक लिया था। और आप ये लोग कहते हैं उनके पास तेल है, तेल कैसे बेचते थे? वो चोरी करके बेचते थे। राइट सर, यानी सर आप कह रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं उससे वो निपट सकते हैं आगे चल के। शिदात चौधरी साहब आपकी तरफ बिल्कुल मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जरा। सर मुझे आज की जो विजिट रहा है DGISI का काबुल के अंदर अपने वफ्द के हमरा, मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर जरा बात कीजिएगा सर कि कितना इंपॉर्टेंट विजिट है ये आज का जो ये विजिट हुआ है। यार ये तो देखिए, इसका ताल्लुक तो इससे है कि उनके अहदाफ क्या थे, वो क्यों गए थे। मुझे तो नहीं पता कम से कम कि उनका मकसद क्या था इस विजिट का। अगर सिक्योरिटी कोई पर्पस था कोई, क्योंकि पाकिस्तान के उनके साथ जो तालिबान की आने वाली हुकूमत है उसके साथ हमने कुछ इश्यूज रेज किए थे, अगर उनके बारे में है तो फिर तो बिल्कुल उनका मकसद ये हो सकता है। लेकिन इसके अलावा क्या है, मेरा ख्याल है कि तालिबान और अफगान जो लोग हैं अपने तौर पे बड़े खुददार हैं। मेरे ख्याल में वो इस तरीके से किसी की भी इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन एक्सेप्ट नहीं करते, ना उन्होंने पहले कभी की है, ना मेरे ख्याल में आइंदा कभी करेंगे। तालिबान भी हों अगर, तो तालिबान जो पहले वाले थे उन्होंने आपकी कितनी बातें मान ली थी, जो आपको 2 3 4 आपने चीजें कही उनको, वो जो 5 साल के दौर के अंदर जो उनको ठीक है। मैं शिदात चौधरी साहब आपकी तरफ जरा आता हूं, लिंक आपका जो है वो डिस्टर्ब हो गया। एयाज वजीर साहब, नहीं बनने वाली जो गवर्नमेंट होगी उसके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात और उसकी चीजें, वो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, नई हुकूमत इस चीज से बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह बाखबर है कि दुनिया के साथ कैसे चलना है। अगर दुनिया के साथ ताल्लुकात अपनी मर्जी के चलाएं तो फिर कई लोगों के रिजर्वेशन है, लेकिन उन्होंने पिछले ये 20 सालों में बहुत कुछ सीखा। और जब से कतर में गए हैं बातचीत करने के लिए, कतर के अंदर भी तजुर्बा हुआ, फिर वहां से दूसरे ममालिक के सफर भी किए, ईरान, मॉस्को, सेंट्रल एशिया, चीन, इन लोगों में भी गए, हमारे यहाँ भी आए थे। तो उनको पता है कि लोगों की रिजर्वेशन क्या है, लोगों के ख्वाहिशात उनसे क्या है, तवक्कुआत क्या है। तो वो कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर पूरा उतरे, क्योंकि दुनिया के साथ चलना है। दुनिया के बगैर इकट्ठे रह के चलना, जिंदा तो रह जाएगा लेकिन मुश्किल बहुत होगा। तो इसलिए चैलेंजेस से भी वाकिफ है, दुनिया के तवक्कुआत से भी वाकिफ है, अफगानियों के तवक्कुआत से भी वाकिफ है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने अफगानी अवाम की तसल्ली करनी है कि वो इस हुकूमत से खुश हो जाए, उस हुकूमत के साथ चले। अगर उसमें वो कामयाब हो गए तो बाकी मराहल है तो सही, लेकिन वो आसानी से तय हो। राइट, शिदात चौधरी साहब आप दोबारा मेरे साथ मौजूद है सर। ये जो बात है कि विद इन अफगानिस्तान वहां के लोगों का जो ट्रस्ट
लेना है या हासिल करना है। आप समझते हैं कि वो ट्रस्ट गेन कर लिया है? और लेकिन फिर से मैं एक बात कहूंगा, हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अफगान अवाम को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए, अयाज वजीर साहब चलें, कुछ वहाँ के ताल्लुक रखते हैं, वहाँ से बात करें, वो अफगानिस्तान से अगर कुछ राब्ता उनका है तो वो हमें बता सकते हैं, और भी लोग इसी तरीके से, शायद अब हमारे औरिया साहब का भी कुछ उसमें हो। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये डिफाइन करना कि अफगान अवाम की तवक्कुआत क्या है पाकिस्तान में बैठ के एक टॉक शो के अंदर, इट इज एन इम्पॉसिबिलिटी। राइट, ये पता लग जाएगा कि तालिबान वो डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अब मैं अगर ये कहूं मिसाल के तौर पे कि तंदूर की रोटियों से वो खुश हो जाएंगे सिर्फ, तो ये तो मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ यार, मुझे क्या पता कि उनको इकोनॉमी किस किस्म की पसंद है, इसमें कोई शक नहीं। और ये साहब से मैं एग्री करता हूँ, आपको डिफाइन करना है कि आपको इकोनॉमी किस तरह की चाहिए। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी चाहिए कि रोटी मिल जाए सुबह दोपहर शाम की, और उसी में, क्योंकि हमारा ऐसा सिलसिला भी है, मेरा भी ताल्लुक गांव से है, मुझे पता है हमारी जिंदगियां कैसे जब हम अभी 70 साल की उम्र के अंदर तो हमें नहीं पता, लेकिन जब छोटे थे हमें पता है कैसे जिंदगी गुजरती रही है। तो इसलिए आज के अफगानिस्तान में मैं ये कहूं कि उस किस्म का माहौल, उस किस्म की इकोनॉमी, उसके इकोनॉमी बजाते खुद इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी सोसाइटी भी है, इकोनॉमी सियासत भी है, और यही डिफाइन करेगी कि वो सियासत कामयाब होती है, ये मुआशरा कामयाब होता है, मुआशरा फिर से तश्कील पाता है कि नहीं पाता। तो बेशुमार चीजें हैं, सिर्फ इकोनॉमी की बुनियाद पे नहीं, और भी बहुत सी चीज, कई दफा जज्बे के ऊपर भूख के साथ लोग जंगें लड़ जाते हैं। लेकिन वो जमाना और था, ये जमाना और है। मेरा ख्याल है कि लेट दी अफगान हैंडल दिस, बजाय इसके कि हम यहाँ पे बैठ के डिफाइन करें कि अफगानी क्या चाहते हैं और ये तालिबान उनके लिए कर पाएंगे। अगर तो हम दुनिया के आज के जो मुरव्वजा स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके सर पाकिस्तान की मईशत है, ईरान की मईशत है, तुर्की की मईशत है, अगर हम इन चीज़ों के साथ लेके चलना चाहते हैं तो इट्स अ टॉल ऑर्डर फॉर तालिबान। उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा उस तरह की मईशत तश्कील दे के, उस तरह के माशरे के बना के, ताकि कुछ सेटिस्फैक्शन उनके अवाम को पहुंचे। और वो देख चुके हैं 20 साल में झूठ सच जैसा भी था, दुनिया वो दिखा के, कैमरा दिखा के चले गए, वो यहाँ से छोड़ के चले गए बदकिस्मती से। लेकिन यही उन्होंने देख लिया, वो कहते हैं अब वो उस तरह की बत्तियां मिलेंगी तो हम खुश होंगे। अब इनको बत्तियों का बंदोबस्त करना है। राइट सर, मैं एक ब्रेक मैंने लेनी है सर, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मैं इसी गुफ्तगू को जरा मजीद आगे लेके चलूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि अफगानिस्तान के अवाम खुद चाहेंगे कि वो क्या चीज पसंद करते हैं और क्या चीज वो चाहते हैं, और ये सब मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्या चाहता है। आज जिस तरह से DGISI का विजिट हुआ काबुल में, देखिए DGISI साहब के विजिट का सच्ची बात यह है कि मैं हालांकि बहुत क्लोज राब्ते में हूं और गुज़श्ता तकरीबन 25 दिन से उनकी काफ़ी बड़ी क़यादत से राब्ते में हूँ। मुझे मेरा ख्याल नहीं समझ आती कि ये क्या विजिट है। मेरा ख्याल एक मुलाकात है, सबसे अहम मुलाकात वो होगी उस दिन जिस दिन अमीर हिब्बतुल्लाह खुंजादा से किसी की मुलाकात होगी दुनिया में, किसी भी उसकी अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई। और मैंने आज से 1 महीने पहले कहा था कि वहाँ उनके यहाँ तालिबान के यहाँ बैत सबसे अहम तरीन चीज़ है और सरबराह अमीर हिब्बतुल्लाह खुंजादा ही आएंगे और अभी तक वही आएंगे। कल उन्होंने अपनी सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली हैं और वो करने वाले हैं। पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान के साथ उनका मोहब्बत का रिश्ता है क्योंकि मुल्ला उमर की वसीयत मौजूद है और मुल्ला उमर ने कहा था कि इस इलाके के अंदर पाकिस्तान से आपने लड़ा नहीं होना, वरना पाकिस्तान के बगैर आप कुछ नहीं हैं, और उसको बहुत अहम लेते हैं और पाकिस्तान को खास तौर पर लेते हैं। और चूंकि ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी माफी है जो तालिबान ने दी है। आप सोच नहीं सकते वो दश्ते लैला वाला वो 8000 तालिबान को कंटेनर्स में बंद करके और उनको धूप में रख के सहरा में जला देने का वाक़या इतना छोटा नहीं था कि माफ किया जा सके। और वो कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके मौलाना हिब्बतुल्लाह अपना बेटा शहीद हुआ है। कौन है तालिबान की बड़ी क़यादत में जिसके पास 4 भाई अनस हक्कानी के जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी माफी जो है दुनिया में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद उन्होंने दी है। तो इतने दिल गुर्दे के साथ वो आए हैं। पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी उन्होंने कहा है कि हमें किसी से कोई नहीं लेना देना। ताजिकिस्तान ने पूरे का पूरा पंजशेर उन्होंने आबाद किया था और पंजशेर में सारी लेके आते थे, अपना मदद लेते थे फारफोर के उस पे अपना अड्डे से जहां से इंडियन आते थे, उन्होंने वो माफ कर दिया। ईरान के साथ तल्लुकात ठीक हुए, बहुत बहुत सही चल रहे हैं। एक बात याद रखें, 60,000 तालिबान
अवाम की मदद के बगैर कोई जंग नहीं जीत सकते थे। पब्लिक सर से पांव तक उनके साथ थी तो वो जीते हैं, वरना उनके मुकाबले में 3,60,000 वो फौज थी जिसके मुकाबले में जो बाइडेन ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, वेल इक्विप्ड है। उसके बाद उससे बेहतर असला किसी फौज के पास नहीं, उससे बेहतर ट्रेनिंग किसी फौज ने हासिल नहीं की, उससे बेहतर सैटेलाइट किस्म की स्पोर्ट किसी और के पास नहीं। उस फौज के मुकाबले में 60-65 सर लेकिन तब तो दुश्मन फौज थी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आज भी हालात वैसी हैं? उस वक्त तो अमेरिकी फौज थी वहां पे। आप देखें, मतलब यह ना कि पाकिस्तान ने उस दिन पढ़ना शुरू किया अफगानिस्तान को, पाकिस्तान में हमारे साथियों ने, मेरे जैसे लोगों ने, जाहिल लोगों ने, कि जब वो तालिबान काबल पहुंच गए हैं, गुज़श्ता 2 साल से तालिबान अपनी वेबसाइट पे रोजाना 25 लोगों की सरेंडर के तस्वीरें लगाते थे कि आज ये सिपाही हमारे पास आ गया, आज ये सिपाही हमारे पास आ गया, आज ये बंदे ने सरेंडर कर दिया। और मैं बताऊंगा कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या गलती है, मैं लेकिन टाइम नहीं है उसका। वो मुस्तकिल सरेंडर की सूरत है। दूसरा, दुनिया में मुझे बताइए कौन सी जगह है कि जहां इतना पीसफुल सरेंडर हुआ हो? ठीक, ये पीसफुल सरेंडर एक रेफरेंडम होता है दुनिया की तारीख में, इससे बड़ा वोटिंग नहीं हो सकती। सर लेकिन जो मजामत, अरे सर जो मजामत हो रही है पंजशेर से, जो मजामत हो रही है वो क्या है? कौन सी? आप एंकर हैं, आप मुझे पंजशेर की लोकेशन बता सकते हैं क्या है? याद वजीर साहब से पूछिएगा जरा, ये बैठे हुए हैं। पंजशेर ऐसे ही है कि जैसे आप लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं और आपका मरी का इलाका, वो पहाड़ी इलाका जो है, और वो आपके उस पर चल रही है, और आपने कम से कम कई 100 किलोमीटर दूर चल के ताजिकिस्तान का आपका बॉर्डर आना है। कुंदूज बीच में रास्ते में आता है और उसको आप घेरे में ले सकते हैं। वो सारे बॉर्डर तालिबान के पास हैं। इतने से उस इलाके के ऊपर आप पूरे अफगानिस्तान, और वो भी अहमद मसूद सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, ये पूछ लीजिएगा ये वहां पर रहे हैं याज़ साहब कि पंजशेर की हैसियत क्या है पूरे इलाके के अंदर। और बाजारक का इलाका जो है, मैं तो बाजारक देखा हुआ है मैंने, कि वो बाजारक जहां इस वक्त लड़ाई चल रही थी, कल रात को जब फतह हुआ है, उस बाजारक को अगर ताजिकिस्तान न चाहे तो वहां पर तो सिर्फ 4 घंटे में ऐसे लोग मारे जाते हैं जैसे हिरन मारा जाता है। राइट, अयाज वजीर साहब जरा इस चीज के ऊपर कमेंट कीजिएगा सर, जो औरिया साहब ने बात की। देखिए, मैं किसी भी शख्स के कमेंट्स पे कमेंट नहीं करता, ये मेरी आदत नहीं। ठीक है, मैं चले पंजशेर के वाले मामले पे आप बता दीजिए कि जो औरिया साहब कह रहे हैं कि छोटी सी जगह है, लेकिन वो तवज्जो का मरकज जरूर बना है। औरिया साहब ने जो कहा बिल्कुल उनकी अपनी राय है, सही है, पंजशेर की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन हम यहाँ बैठ के इसमें क्यों उलझ पड़ते हैं कि पंजशेर फतह किया नहीं किया, लड़ाई जारी है नहीं जारी है। पंजशेर तो पिछले दौर में भी जब तालिबान आए थे तो उस वक्त अहमद शाह मसूद के जेर असर था, लेकिन एक वक्त आया, उसका मैं खुद जाती सबूत आपके सामने बैठा हूँ, कि एक वक्त आया, ये 1999 की बात है, कि अहमद शाह मसूद ने बजरिया बुरहानुद्दीन रब्बानी, जो उस वक्त उनके अभी तक सदर माने जाते थे यूएन के अंदर, उन्होंने कहा कि अहमद शाह मसूद सरेंडर होने के लिए तैयार है, मुल्ला उमर के नीचे काम करेगा, सिर्फ ये एक दरखास्त है कि पंजशेर वो तालिबान के लिए चलाए। तो हम सीधा गए मुल्ला उमर साहब के पास। मुल्ला उमर साहब ने पहले तो बहरहाल 3 घंटे के बाद वो भी राजी हो गए। तो जब हम डेट तय कर रहे थे इस सरेंडर के लिए, तो हमारे मुल्क के अंदर मुशर्रफ साहब आ गए, वो हुकूमत गई जिसने हमें एक शटल टीम बनाया था ये बातचीत कराने। तो कहने का मकसद ये कि उस वक्त भी फतह हो रहा था, तकरीबन हो चुका था। जब आप एक मरतबा सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए तो आप पुश से कर ले या बंदूक से कर ले, एक बात है। पंजशेर कितनी देर तक चलेगा? अगर लड़ाई जारी भी है, लेकिन अगर काबुल के अंदर हुकूमत ऐसी आ जाए जिसमें ये दूसरे इतने, खासकर ताजक, उज़्बक, हजारा, वो उसमें शामिल हो, तो फिर पंजशेर की खा वो लड़ाई जारी भी हो, फिर इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि पीछे से उन्होंने ताजिकिस्तान के साथ जो उनका लिंक है वो ऑलरेडी कट चुका है। राइट। तो ये एक दरा रह जाएगा। दरा कितनी देर तक अपने आप अपने वसाइल पे जिंदा रह सकता है? ये तो नामुमकिन है कि हमेशा वो इसी तरह से रेजिस्ट करेगा। लेकिन एक खबर तो ये भी है कि शायद जो लड़ने वाले थे, अहमद शाह साहब का बेटा और अमरुल्लाह साले,
शायद वो पंजशेर में नहीं है, वो चले गए और पंजशेर का कंट्रोल तालिबान के पास है। अब वो अनाउंस नहीं करते, क्यों नहीं करते उनकी भी वजह, लेकिन जश्न मनाई गई, काबुल में फायरिंग हो गई थी, कह भी दिया, लेकिन ऑफिशियली शायद अभी मुनासिब नहीं समझ रहे। राइट सर, मैं सर वो लास्ट एक सवाल है, मैं तीनों पार्टिसिपेंट से एक एक शॉर्ट जवाब ले लूंगा। शहजाद चौधरी साहब, आपसे मैं आगाज कर देता हूं कि आप आगे देख क्या रहे हैं, इसको वे फॉरवर्ड क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान और बनने वाली गवर्नमेंट को? देखिए, गवर्नमेंट बने, कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हों, कुछ पता लगे कि किस रास्ते पे चलने के लिए ये गवर्नमेंट है चलेगी, उससे फिर कुछ हौसला हो आसपास के मुल्कों को भी और बाकी दुनिया के ममालिक को भी कि ये जो हुकूमत बन रही है ये एक रिलायबल सस्टेनेबल शक्ल के अंदर आगे चलने के लिए इसे अहलियत रखती है। फिर मेरा ख्याल है जो बाकी ममालिक जो कि अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ले रखते हैं, मिसाल के तौर पे ईरान है, पाकिस्तान है, चीन है, ये ममालिक फिर आगे किस तरीके से फिर अपना उनसे मुलाकातें और फिर जो भी प्लान्स प्रोग्राम्स हैं, ऑब्वियसली उनके लिए सबसे पहला काम होगा कि डॉलर ढूंढे जाएं, क्योंकि डॉलर नहीं आएंगे तो तेल नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा तो कुछ और बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, और बाकी ये सारे मामलात होंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो भी उनका मसला होगा। और लेकिन ये सब के सब मिल के उस मामले, और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में जबकि ये हुकूमत बन जाती है उसके असरात बाकी सूबों में आ जाते हैं, बाकी जगहों पे सूबों में गवर्नर्स लग जाते हैं और मुस्तकिल बुनियादों पे लग जाते हैं, तो फिर ये जो दाइश का मामला है इसको कैसे निभाना है, कैसे पकड़ना है, टीटीपी का मामला कैसे पकड़ना है, कैसे समझाना है, ये चीजें भी मैटर करेंगी, क्योंकि इनके हल किए बगैर चीन जैसे मुल्क अंदर नहीं घुसेंगे अफगानिस्तान। राइट, और साहब योर लास्ट कमेंट ओवर इट सर, कि ये तमाम चीजें बन जाती हैं। पहली बात मैं ये बताऊं कि दो तरह की होती हैं गवर्नमेंट्स। एक होती है कि फेडरल ऊपर लेवल पे जिसमें वजीर होते हैं, बाकी सारी ये दुनिया को दिखाने की होती है। एक होती है नीचे के लेवल पे। इस वक्त अफगानिस्तान में एक हफ्ता पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं, आज की बात नहीं, एक हफ्ता पहले से कोई जिला ऐसा नहीं जहां पुलिसवाल मुकर्रर ना किया जा चुका हो, कोई जिला ऐसा नहीं जहां पुलिस का सरबराह मुकर्रर ना किया जा चुका हो, कोई सूबा ऐसा नहीं जहां उन्होंने अपने गवर्नर नहीं लगा दिए। तो बुनियादी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर गुज़श्ता एक हफ्ते से चल रही है। यानी ये चीज तो स्ट्रक्चर बना दिया गया है, वजारतों का ऐलान होना बाकी है। नहीं, ये ना, जिसने अवाम के साथ डील करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन एक हफ्ते से चल रही है। जिसने इंटरनेशनल लेवल पे जो जिसे कहते हैं, आज सारे वजीरों को उठा के पाकिस्तान के 2 महीने के स्विट्जरलैंड बना भेज दिया जाए तो पाकिस्तान चलता रहेगा। तो जिस चीज ने अफगानिस्तान को चलाना है वो एक हफ्ते से चल रहा है। राइट, तो ये सूरत हाल है वहां पर इस वक्त। और एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी सर? इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनके साथ एक्सेप्टेबिलिटी इजी हो जाएगी सर? नहीं, वो एक देखें, वो आने के बाद देखेंगे। पहली बात तो यह है कि अगर अफगानिस्तान की इस सूरत, इस वक्त 48% जो ठेके हैं ना वो चाइनीज फर्मों के पास हैं, जो कॉपर गोल्ड का प्रोजेक्ट उनके पास है, लिथियम का उनके पास है, गैस पाइपलाइन का उनके पास है। अमेरिकन कहते थे वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज कंपनीज, ठीक? तो वो क्या समझते हैं, और उनका 39 ईयर्स लीज पे एग्रीमेंट है हांगकांग में, जो 2014 में ठेके होते। आप क्या समझते हैं वो ठेके छोड़ के भाग जाएंगे वहां से? ठीक है, आप क्या समझते हैं वो अफगानिस्तान को डिस्टर्ब देखेंगे? राइट, अयाज वजीर साहब शॉर्ट कमेंट सर, 5 सेकंड में कमेंट कर दीजिएगा सर, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट सर। वे फॉरवर्ड वही है कि ये हुकूमत बन जाए, उससे वे फॉरवर्ड शुरू हो जाएगा। दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट के पॉजिटिव रिएक्शन दुनिया से हासिल कर लेती है कि उसमें रिजर्वेशन मजीद आएगी। तो वी हैव टू वेट फॉर आवर वे फॉरवर्ड until we see the new setup. राइट सर, बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब, शहजाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और ये मकबूल साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।